Good morning, students. I am your chemistry teacher, and today I am going to teach you the chemistry chapter number 1, unit number 1, and the name of the chapter is the fundamentals of chemistry. So today we are going to start the definition of chemistry and the science. Science, you know already, science is the knowledge gained by the observation by the human being, so that is called the science. Now science can be divided into so many branches, but the chemistry is the main branch. Physics and biology, these are the main branches of the chemistry. And chemistry, today we are going to define the chemistry as chemistry is the branch of science which deals with the composition, structure, properties and reaction of matter is called the chemistry. And you know that what is first of all we define the matter. What is matter? Matter, anything which occupies space and having some volume, so that is called the matter. And there are three forms of matter: liquid, solid, liquid and gases. So in the definition of the chemistry, you can see that the composition, structure, properties and the reaction of matter. So it means composition means what type of atom when they combine and they form the molecule, or so you have to see in the composition. And what is the structure of the composition, structure wise you can explain. And the properties mean physical, chemical properties. What are the physical and chemical properties mean? Physical properties mean what is the temperature, melting point, boiling point, and its density, its color, its shining, whatever. So these are the physical property. But the chemical property, when they chemically combine with each other, they form the new chemical compounds or the things. And in this way, so everything, whatever I have told you about the composition, structure, properties and the reaction, so collectively it is called the chemistry. After this, the branches of chemistry, because the chemistry subject is so vast, so the study ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी ब्रांचेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. और ब्रांचेस में अगर हम देखें तो काफ़ी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की. उसमें यहाँ पर जो सारी आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ इनके नाम जो है ना वो लिखे हैं बोर्ड पर, और इनको आपने अपनी बुक के मुताबिक ही जो है वो स्टडी करना है. तो सबसे पहले जो है फिजिकल केमिस्ट्री है. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry. So these are the 8 branches which are given in your course. आपके कोर्स में 8 किस्म की ब्रांचेज जो है वो दी गई हैं. तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो थोड़ा स्टडी करेंगे. पहले इसकी इंग्लिश में हम डेफिनेशन जो लिखी हुई है, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. तो बुक के मुताबिक अगर आप देखें तो physical chemistry is defined as the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter. यानी इसमें ये बात बताई गई है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उनकी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ और उनकी कंपोजिशन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो मुताला किया जाता है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में ही आ जाता है. इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the
study of carbon and hydrogen. The compounds which are made by the carbon and hydrogen, they are called the hydrocarbon. The study of all the chemical compounds, so they are called this branch of science is called the organic chemistry. And in the last, hydrocarbon and their derivatives. Derivatives mean the chemical compounds which are derived from the hydrocarbon. And most of the chemical compounds, they make the single covalent bond, double covalent bond and the triple covalent bond. In this way we can explain by the example, just like methane. अगर आप मीथेन को देखें तो मीथेन का फॉर्मूला CH4, और इसका मतलब ये है कि इसमें 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कार्बन के साथ अटैच हैं और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये मीथेन एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। लेकिन अगर डेरिवेटिव्स की बात करें, जैसे ये मैंने बताया ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला देखें तो C6H12O6, तो इसमें 6 कार्बन के एटम है और 12 जो है ये हाइड्रोजन के और 6 जो है ऑक्सीजन के। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही ताल्लुक रखता है। इसी तरीके से जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हम प्रोटीन है, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे जो जिससे इंसानी जिस्म या प्लांट्स वगैरह बनते हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम इसको स्टडी करते हैं। After this, the inorganic chemistry. Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds, except those of compounds of carbon and hydrogen, mean hydrocarbon. So, and their derivatives. So, without the study of hydrocarbon and their derivative, the elements or chemical compounds and their properties we study, so that is called inorganic chemistry. After this, the biochemistry. Biochemistry is also the important branch of chemistry. It deals with the study of the structure, composition and the chemical reaction of the substances found in living organisms. Okay. नंबर 4 पे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि बायो मीन लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री मीन द जस्ट लाइक द डेफिनेशन। तो जो केमिस्ट्री लिविंग थिंग्स में इस्तेमाल होती है, अब लिविंग थिंग्स में जो बॉडी स्ट्रक्चर जो बना है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन्स, वाटर, ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड जो हैं ये मिलकर, तो जब आप इनकी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री लेवल पे, तो वो हमें बायोकेमिस्ट्री की स्टडी जो है बताती है। इसके बाद इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट, मैंने अभी यहाँ पर ग्लूकोज की एग्जांपल दी थी, और इसी तरीके से फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन है, और जो विटामिन है, विटामिन की आगे कितनी किस्में हैं, और लिपिड्स है, लिपिड्स में जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो एक अलग स्टडी हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ये बनती है, या प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो भी इन्हीं चीज़ों से ही मिलकर बनता है। जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो वो हम बायोकेमिस्ट्री में ही की जाती है।
बाकी इसकी डेफिनेशन जो है बुक में वो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। 5वें नंबर पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साबुन है, डिटर्जेंट्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, और जो ऐसी चीज़ें जो हमें कारखानों से तैयार होकर आती हैं, तो वो उसमें केमिकल प्रोसेस के ज़रिए जो बनाई जाती हैं, तो जब हम उसके जो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम देखें तो जो चीज़ें इंडस्ट्रियली जो बनाई जाती हैं, कारखानों में बनाई जाती हैं, तो वो उसकी जो स्टडी है वो सारी केमिस्ट्री कहलाती है। तो हम उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से शो करते हैं। तो इसको जब आप स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन, तो ये आपको बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें पता चलेंगी। नंबर 6 पे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। एटम जो है वो, उसके बारे में आपको पता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो अगर हम उसमें देखें तो उसमें जो एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो उनकी स्टडी के, और जो इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो हम वो सारी स्टडी। इसमें एक और नई चीज़ आपको मिलेगी, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कुदरती तौर पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी नेचर में मिलते हैं कि उनमें कुदरती तौर पर शुआएं निकल रही होती हैं, रेज, द रेडिएशन, दे एमिट द रेडिएशन, यानी वो शुआएं खाली कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। यानी अब अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन जो है ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो फिर इसके बारे में, तो ये सारी स्टडी जो है एटम और उसके एटम के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिशर रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है, और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको आगे चलकर समझ आएंगी। तो हम स्टडी करते हैं तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एनवायरमेंट हम ये कहते हैं माहौल। तो हमारा जब माहौलियाती तौर पर जो हमारे इर्द गिर्द बेजान चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि पहाड़ है, समुंदर है, पानी है, ठीक है ना, जो लकड़ी है, ये सारी बेजान चीज़ें हैं, और उनमें जानदार चीज़ें भी मिलकर रह रही होती हैं, जैसे कि हम इंसान है, जानवर है और पौधे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिलकर, जो दोनों जब चीज़ें कलेक्टिवली आपस में जुड़ जाती हैं, तो हम उसको एक माहौल का नाम देते हैं, एनवायरनमेंट का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर इंसान अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से जो कुदरत में गैसेस का एक बैलेंस है, जैसे ऑक्सीजन हम ये कहते हैं 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो ये एक कुदरती तौर पर इनका एक बैलेंस है नेचर में। अगर इस बैलेंस से ये गैसेस में ज्यादती हो जाती है, तो वो हम ये कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट जो है ख़राब हो रही है। तो हमें ऐसी केमिस्ट्री जिसमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कहाँ कौन सा जो लेवल है वो इंसानों के लिए नुकसानदेह है, कौन सी गैस का लेवल जो है वो पौधों के लिए नुकसानदेह है। तो इस सारी स्टडी को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आपने केमिस्ट्री में बुक में पढ़नी है ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं, यानी उसको एनालाइज किया जाता है कि ये किस किस किस्म के केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी है, इसमें कौन से एटम हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, और ये किस, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो कोई ऐसी पॉइजनस फूड खा जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर जो है उसकी मौत की वजह जो ना ये बयान करते हैं, और उसकी मौत की वजह क्या होती है कि उसके जो उसने खाया होता है उसके फूड पार्टिकल्स को लेकर
उसको एनालाइज करते हैं कि ये किस किस किस्म के इसमें जो एलिमेंट्स है, एटम है, और कौन सी पॉइजनस कौन सी नॉन पॉइजनस चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो उससे फिर उसकी रीज़न पता चल जाती है डॉक्टर को कि इसने जहर खाया या जहर किया गया। तो ये हम इस सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं। तो इस लिहाज से एक दो तरह के इसमें ना चीज़ें बयान की गई हैं। एक को हम पहले जो चीज़ है, एक चीज़ों को एनालिटिकल केमिस्ट्री दो तरह से इसको हम बयान कर सकते हैं। एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। दो तरह के एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसे लफ्ज़ से जाहिर है कि उसकी क्वालिटी को देखना है, हमने केमिकल कंपाउंड की क्वालिटी को देखना है। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि उसकी जो मिकदार है, यानी वो कितने परसेंट इसमें फलां चीज़ मौजूद है, कितने परसेंट ऑक्सीजन मौजूद है, कितने परसेंट हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये उसकी जो है ये क्वांटिटी को शो करता है। क्वालिटी जो है वो किसी चीज़ का कितना प्योर होना या इम्प्योर होना, ये उसकी जो क्वालिटी को शो करता है। तो इस तरह इसमें जब आप स्टडी करेंगे, आपकी बुक में जो दिया गया है, तो वो आपको ज़रूर इसके बारे में समझ आ जाएगी। ओके।